Sir, Yes. sir, can you tell the difference between median and amplitude? Not amplitude, altitude. I will tell you the Alt- difference. Exact difference, okay? Suppose this is a triangle. A, B, C. This point is the midpoint of BC, D, such that BD is equal to DC. Then if you join AD, that is the opposite vertex, this is side BC, the opposite vertex is A. If you join A with the midpoint of BC, AD is called as median. Now you understand what is a median. Median is a line joining vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. This is median. Okay. How many medians are there in a triangle? There are 3 medians. From each vertex to the midpoint of every opposite side. So suppose here the midpoint of AC is E. So you can join it with B and you will get one more median, BE. Suppose the midpoint of AB is F. So you can join CF and you will get one more median. So how many medians do you see in this triangle? AD, BE and CF. There are 3 medians. In any triangle there are 3 medians. Any triangle. Okay. Acha, these medians they intersect at a point which is known as centroid. Which is known as centroid. Point of intersection of all 3 medians. One more information regarding medians. Before I give you that information regarding medians, I will explain you what is an altitude. So I am explaining about altitude. If you find the meaning of the word altitude in dictionary, it means height. Altitude का मतलब height होता है. You go on a mountain has a certain altitude or height. So what is altitude? Suppose this is triangle PQR. If you draw a perpendicular from a vertex to the opposite base or opposite side, perpendicular. For knowing altitude, you should know the term perpendicular. Does everyone know what is perpendicular? What is Yes, sir. perpendicular? Perpendicular is a line which is making 90 degree Which with divide? another line. Okay, it makes an angle of 90 degree. The only meaning of perpendicular is associated with right angle or 90 degree. If two lines make 90 degree with each other, they are both perpendicular to each other. ठीक है. So यहाँ पे can I say that PS is perpendicular to QR? Can I say that Yes, sir. PS is perpendicular to QR? Yes, it is. PS is perpendicular Yes, to sir. QR. Correct? Okay. Now, just see this.
Can I say that QR is perpendicular to PS? Yes, this is also true. Both are true. एक लाइन अगर दूसरे से परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन पहले वाले से परपेंडिकुलर होगी. हमेशा ऐसा ही होता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमें ये सेकंड स्टेटमेंट का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है. ठीक है. वी आर कंसर्न्ड विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर. तो हमेशा याद रखना, अगर किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर हमने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो परपेंडिकुलर का नाम होता है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्राइंगल. दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. तो एक ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं? एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं. डू यू नोटिस आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, आई एम आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस माई सेल्फ. ठीक है. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं ही आंसर दे रहा हूँ. मैं तुम्हें क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ? तुम्हें परेशान करने के लिए पूछता हूँ, स्ट्रेस देने के लिए पूछता हूँ. मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, राइट. लेकिन आज तुम्हें ये समझ में आएगा कि टीचर बिना क्वेश्चन पूछे जब पढ़ाता है तो तुम्हें टेंशन तो नहीं आता, लेकिन तुम सीखते भी नहीं हो. तुम सुन लोगे ये, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा. फिर वो डर ख़त्म हो गया अगर, तो बहुत अच्छी बात है, यू विल बी हैप्पी. बट क्या उससे तुम खुद से सीखोगे? अगर सीखोगे तो मैं लाइफ में क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, कभी भी नहीं. मेरे से खुश कोई नहीं होगा, मुझे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है. तो फिर मैं क्या करूँगा पता है? मैं यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस बना के डाल दूंगा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा नहीं. बच्चे घर पे यूट्यूब का वीडियो देख के सीख जाएंगे. लाइव लेक्चर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि मैं पूछ सकूं तुमसे कि तुम्हें क्या समझ में आया क्या नहीं. मेरे क्वेश्चन पूछने के पीछे का मोटिव है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं. लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझे ना मिले तो ये नेचुरल है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए कि उसको गुस्सा आएगा. मुझे तो आता है, बहुत आता है गुस्सा, क्योंकि मैं सिखाता हूँ ना. पहले मैं तुम्हें घर पे टास्क दे रहा हूँ कि आप वीडियो देख के नोट्स लो, तब तो आएगा ना फिर आंसर. लेकिन तो कल फिर भी नहीं आया, इसलिए मैं गुस्सा हुआ. तो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कल मैं गुस्सा क्यों हुआ, वो सही था और मुझे होना चाहिए. लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया. अब आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. ठीक है. जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो. क्योंकि मुझे ओम ने क्वेश्चन पूछा था कि एल्टीट्यूड और मीडियन में फ़र्क क्या है. बहुत बड़ा फ़र्क है ओम. ये फ़र्क मैंने बताया यहाँ पे एल्टीट्यूड के मीनिंग के साथ. एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड. तो एक ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड होते हैं? एक ट्राइंगल में होते हैं 3 एल्टीट्यूड. कितने एल्टीट्यूड होते हैं? 3. पी एस, क्यू टी एंड आर एक्स. मैंने कुछ भी नाम दिया है, तुम भी कुछ भी नाम दे सकते हो. बट देर आर 3 एल्टीट्यूड्स यू कैन सी. 3 परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द 3 वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड. अच्छा, ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं. ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ O, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर. क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो सेंटर. अब मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा हूं. एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाय सॉरी एल्टीट्यूड एंड मीडियन. सॉरी फॉर दैट. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, can we say that in the figure A, when three medians intersect, they meet at a point. That point can be known as centroid. And in the second figure, can we say that when
perpendiculars meet at a point, they when are t known as when the three point is known altitude when three altitudes meet sorry at a sir, point, when three altitude. Okay, हाँ sir. yes, yes you can say that. ओके अब मुझे इसमें बताओ कि एल्टीट्यूड कौन है। अरे यार मैं फिर से, मेरे को बहुत गंदी आदत है, मैं भूल जाता, मैं क्वेश्चन पूछ लेना। Height. मत बोल मैंने कसम खाई आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आज के दिन तो नहीं पूछूंगा, कल से भले मैं वापस हो जाऊं पहले जैसा, लेकिन आज नहीं। एल्टीट्यूड और मीडियन, गंदी आदत। तो एल्टीट्यूड यहाँ पे है, अपने माइंड में तुम अपने आप को आंसर कर सकते हो। एल्टीट्यूड है यहाँ पे एडी, और मीडियन जो है ना, अगर मैं बोलूँ तुमको कि बी एस और सी एस या एस सी इक्वल है, तो एल्टीट्यूड सॉरी मीडियन हो जाएगा ए एस। अभी पहचान ना आया मीडियन कौन सा, एल्टीट्यूड। अच्छा अब मैं तुम्हें और एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, and this is related to altitude and median, and this is a very important information since we will have questions based on altitude, medians and this special two types of triangles. देखो पहला ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है। ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू, क्यू आर और पी आर ये तीनों इक्वल है। ट्राइंगल ए बी सी को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल पी क्यू आर को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तुम्हें पता ही होंगे ये दोनों टाइप के ट्राइंगल। ओके वेरी गुड। अब देखो तुम, मैं एक लाइन बना रहा हूं, तुम्हें ये लाइन दिख रही है एडी। अब मैं एक दूसरी लाइन बना रहा हूं, दूसरे ट्राइंगल में। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग पी एस। अभी तुम्हें इससे एक चीज समझ में आ रही होगी शायद, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन है, और जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड है। दोनों अलग अलग नहीं है। इससे पहले वाला ट्राइंगल कौन सा था? स्केलिन। स्केलिन ट्राइंगल में एल्टीट्यूड अलग था, मीडियन अलग था, लेकिन आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड ही मीडियन है और मीडियन ही एल्टीट्यूड है। दे आर द सेम। मतलब अगर तुम आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स वो होता है जो तीन वर्टेक्स होते हैं, लेकिन मेन वर्टेक्स ए है क्योंकि वो वर्टेक्स है जहाँ पे दोनों इक्वल लाइंस मीट करती हैं, ए बी और ए सी इक्वल साइड्स जहाँ मीट करती है वो मेन वर्टेक्स है। मेन वर्टेक्स है ऑपोजिट बेस के ऊपर। अगर तुमने मीडियन बनाया या तुमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो वो दोनों अलग अलग नहीं होंगे, एक ही लाइन होगी।
altitude will be median, median will be altitude, they will be the same. इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी यही बात है. तुमने अगर एल्टीट्यूड बनाया किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी बेस के ऊपर, तो वही मीडियन होगा और वही एल्टीट्यूड भी होगा. दे विल बी द सेम. दिस इज वन वेरी 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 स्पेशल प्रॉपर्टी, वेरी स्पेशल, जो तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज करने वाले हम लोग. सो यू विल ऑलवेज सी. अच्छा, और एक चीज़ मैं बताता हूँ. आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात छेड़ी है तो एल्टीट्यूड और मीडियन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन रिलेटेड तो है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बेस एंगल्स होते हैं ना, वो हमेशा इक्वल होते हैं. तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. ये दो एंगल दिख रहे हैं तुम्हें? ये हमेशा इक्वल होते हैं, बी और सी. बेस एंगल्स बोलते हैं इसको. और इसको ये भी बोलते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. इक्वल साइड के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं, तीनों के तीनों, और 60 डिग्री के होते हैं. ये भी हमें पता है. अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो भी यहाँ पे एक चीज़ सीखने जैसी है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ADB और ADC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं. कॉन्ग्रुएंट, इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट. उनके सारे साइड्स इक्वल हैं, उनके सारे एंगल इक्वल हैं. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में PQS और PRS, ये दोनों साइड में जो एडजेसेंट ट्रायंगल है वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी भी आ गई. अब बताओ ओम, तुम्हें समझ में आया? यस सर. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मीडियन और Yes, एल्टीट्यूड का? वेरी गुड. किसी को कोई और डाउट, कुछ और पूछना है, कुछ और बताना है, प्लीज आस्क मी. आई एम ऑल Sir, इयर्स. I just wanted to inform that Yes. our class is on midpoint of theorem. मिड पॉइंट थ्योरम. So it is the 12th chapter. Yes. I know, it is I the know. 12th Yes, yeah. Midpoint theorem. It's a very interesting chapter. किसी और को कोई क्वेश्चन है और कुछ पूछना है about congruency or about anything else, basics of triangle, anything else you want to ask me? Okay, ठीक है. अब मेरी बारी पूछने की नहीं, सॉरी, मेरी बारी सिखाने की. ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं 9A में करने वाला हूँ, 9th. अब किसी को ये क्वेश्चन आएगा कि सर आप इतने सारे क्वेश्चन सब छोड़ के डायरेक्टली ये वाला क्यों कर रहे हो? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैप्टर में से सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करूँगा. बाकी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा जो तुम्हें करना है, और फिर मैं उसके डाउट सॉल्व करूँगा. वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल द क्वेश्चंस because I have already done all the questions in my video lectures. Everything. No point in doing live the same thing, teaching you live. There is no point. I'm going to do the selected ones to show you what is important, how the answer has to be written, how the concept has to be applied. ठीक है, ये मैं आज तुम्हें बताऊंगा, सिखाऊंगा with help of selected questions. So let us do the selected questions and let us finish this chapter today itself. ठीक है, fair enough everyone, right? Anytime you want to see more questions, understand more questions, I am going to give you links to my YouTube lectures this week. For the whole week I am going to give you. You can watch it if you have time. ठीक है. बट सिंस वी आर डूइंग लाइव लेक्चर्स, तो लाइव में भी मैं तुम्हें आज समझाऊंगा. एंड इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. लेट अस बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. क्या तुम्हारी बुक में सेम क्वेश्चन है? जस्ट वांट टू नो दैट. Exercise 9A, question number 9. Do you have the same question?
Yes, sir, we have the same question. Great. So you Yes, can sir. you can look in your book also. You can look on my screen also, wherever it is easy for you to read, because I have zoomed out a little bit for creating more space for me. Anyways, listen to me very carefully, because the kind of information which I will be giving, it will be very crucial. If you miss out on something, you will lose marks. Okay? So listen to me very carefully. First thing, for any question in geometry, and remember, geometry starts for class 9th with this chapter. Okay? The first thing in geometry, if you want to solve any question, it is compulsory to draw the diagram. Number 1. So I will draw the diagram again, no matter it is given over here, I will draw it again over here. Sir, can you repeat what did you say, because got disconnected? I said that in geometry, this is the first chapter of geometry you're doing. In geometry, it is one thing is absolutely compulsory. There are certain things, but the first thing which is compulsory is drawing the diagram. So it can be rough, right? Yeah, it has to be rough, no construction. Only in the chapter construction you will do the construction, but here you can use simple pencil and scale and draw it without measurement. जो क्वेश्चन में दिया है वही, अगर उसमें कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी कर देना, बट डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है. नहीं किया तो मार्क्स कटते हैं. मैं तो काटूंगा मार्क्स, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर मार्क्स काट देते हैं क्योंकि डायग्राम ड्रॉ नहीं किया. ये मैंने अनन्या को बताया था जब उसने मुझे होमवर्क भेजा था. राइट अनन्या? Yes, sir. You said. या ओके. First important thing is the diagram. Number 1. The second compulsory thing is given. So there is this information you have to write in your solution which is given to you in the question. So what information is given to you in the question? From the given diagram, in which ABCD is a parallelogram. So the first information which I can see is ABCD is a parallelogram. So you might be wondering कि ये क्या लिख दिया सर ने, LLGM. ये LLGM का मतलब होता है पैरेललोग्राम, और ये L नहीं है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं. पैरेलल, GM का मतलब होता है ग्राम, पैरेललोग्राम. उसका सिंबल है, ये अनऑफिशियल सिंबल है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन सिंबल है, यूज कर सकते हो. ABCD is a parallelogram. ABL is a line segment and E is midpoint of BC. ABL is a line segment, तो ABL is a straight line. ठीक है, and E is midpoint of BC. E is midpoint of BC. अगर E midpoint है BC का, तो BE will be equal to CE होगा. ठीक है. To prove, number 1, ट्राइंगल DCE. अच्छा, मैंने क्या लिखा? सेकेंड थिंग गिवन. ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू राइट. गिवन कंपल्सरी, डायग्राम गिवन. थर्ड चीज क्या लिख रहा हूं मैं? टू प्रूव. नंबर 3, क्या प्रूव करना है? सब क्वेश्चन में दिया है, प्रूव दैट. तो ट्राइंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू triangle LBE.
Number 2, AB is equal to BL, and number 3, AL is equal to 2 times DC. AL is equal to 2 times DC. So this is what you have to prove. ठीक है, diagram given to prove. Now if there is any construction which is required, you have to write here construction. And there is a construction which has been done in the diagram already. So you need to mention construction क्या है, जो dotted line में करते हैं ना हम लोग, वो construction होता है. अच्छा, तो construction क्या है? Join DE and extend to meet AB produced at L. मतलब मुझे DE को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन ही नहीं करना है, आगे एक्सटेंड भी करना है DE को. कहाँ तक? जब तक वो AB को, जहाँ पे AB को प्रोड्यूस करके हमने आगे लेके आया है L तक, यहाँ पे AB को प्रोड्यूस करके L पे DE मीट करेगा, वहाँ तक उसको ज्वाइन करना है. ज्वाइन DE एंड एक्सटेंड टू मीट AB प्रोड्यूस्ड एट L. DE को एक्सटेंड करो और AB को भी एक्सटेंड करो, दोनों को L पे मीट करवाओ. सो दिस इज नंबर 4 विच इज ऑप्शनल, विच इज कंस्ट्रक्शन. This is the number 4 thing, construction, which is not compulsory, optional, क्योंकि ये किसी किसी क्वेश्चन में ही होता है. सारे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती, और जिसमें है उसमें करके दिखाना. राइट, सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. अभी तो सोल्यूशन है ही नहीं. डायग्राम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ये तो सिर्फ बिगिनिंग है. अच्छा, इतना तुम लिखोगे ना, इफ यू राइट दिस मच यू विल गेट 1 मार्क. इफ यू डोंट राइट इट, योर 1 मार्क विल बी कट. इसका 1 मार्क होता है हर क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन. तो ये जो है ना, ये प्रूफ बेस्ड ज्योमेट्री है. वी आर डूइंग प्रूफ बेस्ड ज्योमेट्री, जिसमें थियरम्स और प्रूफ्स हैं. प्रूफ बेस्ड ज्योमेट्री में देर इज ऑलवेज दिस मेथड, जहाँ पे तुम्हें डायग्राम गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, इसका 1 मार्क तो मिलता ही है. अगर नहीं लिखा तो 1 मार्क कट जाएगा. ठीक है, ओके. अब इसका प्रूफ लिखेंगे हम लोग. यू आर गोइंग टू राइट द प्रूफ. ओके, नेक्स्ट इज द प्रूफ. ये प्रूफ जो होता है ना, ये तुम्हारा आंसर है. दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ यू प्रूव इट. चलो, प्रूफ में मैं दे देता हूँ नंबर 1. तो नंबर 1 प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल DCE और LBE को कॉन्ग्रुएंट. अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं. पहले तो 2 ट्राइंगल को लोकेट करो. ये हो गया DEC और LBE, DCE और LBE. Do you see those 2 triangles? If you want, I can highlight the 2 triangles for you with one with red ink and the other with green ink. Now I'm sure that you will be able to see both the triangles. Do you see them? 2 छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं. Yes, sir. वेरी गुड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स में जो जो चीज़ें इक्वल है, बस उसको लिस्ट करना है तुमको. यू हैव टू गो ऑन लिस्टिंग द पार्ट्स विच आर इक्वल. अब यहाँ पे सबसे बड़ा
चैलेंज है, बिकॉज इफ योर ज्योमेट्री इज वीक, विच इज द एग्जैक्ट रीजन आई गॉट मैड यस्टरडे, अगर तुम्हारी ज्योमेट्री वीक है तो तुम ये चीजें नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है, बेसिक्स स्ट्रांग होना। अगर ज्योमेट्री का बेसिक पक्का है तो मैं तुम्हें आसानी से तुम 3 चीजें इसमें ढूंढ लोगे। वाई वी हैव टू फाइंड ओनली 3 थिंग्स? बिकॉज अगर तुम नोटिस करो, मैंने ये वीडियो में भी बताया है, फर्स्ट वीडियो में ही बताया है कि किसी भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो टेस्ट है, सफिशिएंट टेस्ट, उनमें सिर्फ 3 लेटर होते हैं। या तो होते हैं वो SSS, या तो होता है ASA, या तो होता है SAS, या तो होता है AAS, या तो होता है RHS। मतलब सिर्फ 3 लेटर्स से हम लोग किसी भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और ये तीनों लेटर के कुछ मीनिंग है, राइट। तो बेसिकली 3 पार्ट्स अगर हमें मिल जाता है 2 ट्राइंगल में इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना किसी भी एक टेस्ट से इजी हो जाएगा। सो ऑल वी हैव टू फाइंड, नंबर 1 इज लोकेट द ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल तो लोकेट कर लिया, अभी इनका नाम लिख देता हूँ मैं। इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल LBE, ठीक है, ट्राइंगल के नाम लिख दिए मैंने। अब इसमें क्या क्या इक्वल है देखो, ऑल यू नीड टू फाइंड विच पार्ट्स आर इक्वल is your eyes and your brain. If they can coordinate with each other, eyes and brain, you can easily find. So I will show you how to find. ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या तुम्हें वो दिख रहा है कि नहीं वो तुम मुझे बताओ। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तुम मुझे बताओ, मुझे क्या दिख रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू। DCE and LBE. CE is equal to BE. This is what I can see in both the triangle. CE is in triangle DCE and BE is in triangle LBE. अगर तुम्हें ये देखना है कहाँ पे है तो I can show you. CE is over here. दिख रहा है CE, and BE is over here. Do you see that? But why are they equal? ऐसा क्यों लिखा मैंने? तो रीजन मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे, given. Yes, sir. Given. गिवन का मतलब है इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, क्वेश्चन में ही दी। सो पार्ट 1, Sir, yeah. means we can count the given information. Yes, I thought that with except the given information we have to find 3. exactly. Some informations will be given, some informations will be given indirectly, hidden. So that you have to find out. List all the informations and prove a certain thing. For that you need your eyes and brain. Simple. Okay, sir. Got it. Okay. This is the first information as per me which is given. Now, another information which is not given directly, hidden, but it is visible. If you have eyes and if you have brain, you can see it. If you cannot see it, don't worry. I will show you. I will show you. The second information which is to be written is, in triangle DCE there is an angle, angle DEC. In triangle LBE there is an angle, angle LEB. And they are both equal. Now if you say, sir, I cannot see these two angles, I will show you. One angle is over here and one angle is over here. Do you see them now? If you cannot see them, I can zoom in and show you. Can you see both the angles now? DEC and LEB. DEC is equal to LEB. Can anyone tell me why are they equal?
ओह सॉरी 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 सॉरी, नो 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 नो, नहीं नहीं सुनूंगा ही नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, मैं बताऊंगा, तुम नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा। दे आर इक्वल बिकॉज, अरे बहुत खराब आदत है मेरे, दे आर इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles. Vertically opposite angles are basically the angles which are formed between the corners of x. If you've seen the letter x, x is nothing but two intersecting lines. इसके ऊपर और नीचे बनने वाले एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल. This might be taught to you in class 7th or 6th maybe for the first time. I'm not sure. I'm just guessing. Yeah. So these two angles are equal. अब देखो ये given नहीं था. Was it given? No. But if you have eyes and if you have brain, you can find it. That's what I'm telling about. That's what I'm talking about. ठीक है. Next thing. Sir, if Yes. Yes. Your voice is cutting. Your voice is cutting. many things. Krish, your voice is cutting a lot. Krish, your voice is cutting. Okay, no problem. Next thing, which is also hidden. It is there, but you have to see it. Angle DCE is equal to angle LBE. कहाँ है ये एंगल? Angle DCE is over here. I will just, yeah, is equal to angle LBE, which is over here. Do you see that? दोनों एंगल दिख रहे हैं. अच्छा ये क्यों इक्वल है? हाँ जी, सर कृष्ण कुछ लिखा है चार बॉक्स. सॉरी. कृष्ण कुछ चैट बॉक्स में लिखा है. हाँ 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 हाँ. Krish, if the triangles are congruent, we can have many parts in common. Yeah, definitely. That is corresponding parts of congruent triangles. But the triangles are not congruent here, na? We have to prove them congruent. So first, let's prove them congruent. Okay, so the next angle I have shown over here, DCE and LBE. अच्छा, ये भी तुमने earlier classes में पढ़ा होगा इसके बारे में. But if you don't remember, I will again show it to you with the help of one diagram. अगर यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होता है. ऐसा तुमने देखा होगा, शायद पढ़ा होगा. इनको बोलते हैं, इनका एक स्पेशल नाम है, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सुना नहीं? सुना ही होगा तुमने कहीं, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर इक्वल. सो आई विल राइट हियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अच्छा, तुम बोलोगे सर ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए ये इक्वल है. इधर पैरेलल किधर है? सो लेट मी शो यू कि ABCD तो एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है ना वो हमेशा पैरेलल होगी. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती है. तो AB और CD पैरेलल है, इसलिए ये दोनों एंगल DCE और LBE विल बी इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, तो अब देखो, अगर तुम नोट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 3 पार्ट दोनों ट्राइंगल के इक्वल प्रूव कर दिए हैं. एक साइड और 2 एंगल. 2 एंगल आजू बाजू में है और दोनों के बीच में जो साइड है उसका सैंडविच बना हुआ है, दिख रहे हो? दोनों एंगल ऊपर और नीचे, एक ब्लैक एंगल है, एक रेड एंगल है, और बीच में साइड है, एक ग्रीन साइड है, एक ऑरेंज साइड है. तुम्हें दिख रहा होगा ये. ठीक है, तो आई कैन से दैट देयरफॉर. अच्छा, अभी करस्पॉन्डेंस की बात कर लेते हैं. करस्पॉन्डेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे को यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना उसको देख के समझ में आ रहा है कि D से करस्पॉन्डिंग साइड L है,
डी से करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एल है, सी से करस्पॉन्डिंग एंगल बी है, सी से करस्पॉन्डिंग बी है, और ई से करस्पॉन्डिंग ई है। तो ट्राइंगल DCE, ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल LBE, नाम भी मैंने करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखे हैं। करस्पॉन्डेंस मतलब कौन से पार्ट, कौन से ट्राइंगल का कौन सा पार्ट दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर पोजीशन के ऊपर आता है, ठीक है, दैट इज करस्पॉन्डेंस। तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे नाम लिख दिया। एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच मेथड, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट इन फैक्ट, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट, ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये फर्स्ट चीज प्रूव हो गया। अब मैं कुछ चीजें और प्रूव करूंगा। जो सेकंड चीज मुझे बोली है वो AB इज इक्वल टू BL प्रूव करना है। नाउ दिस इज वेरी इजी, कैसे करना है देखो। तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब मैं लिखूंगा देयरफॉर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर DC इज इक्वल टू BL, DC इज इक्वल टू BL। क्यों DC इज इक्वल टू BL? CPCTC, what is CPCTC? Corresponding parts of congruent triangles are congruent। मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, DCE और LBE को। नाउ बाय CPCTC DC एंड BL आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, बट DC इज ऑलरेडी इक्वल टू AB, DC तो ऑलरेडी AB से इक्वल है। क्यों DC और AB इक्वल है? बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तुम देख रहे हो हर एक स्टेटमेंट के आगे मैं ब्रैकेट में रीजन लिख रहा हूँ। एवरी स्टेटमेंट हैज गॉट अ रीजन इन फ्रंट ऑफ इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो DC इज इक्वल टू AB, बट DC और BL इक्वल है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। एंड फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 DC BL से इक्वल है, DC AB से इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि AB विल बी इक्वल टू BL, AB विल बी इक्वल टू BL। प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, AB इज इक्वल टू BL। नेक्स्ट क्या चीज प्रूव करनी है हमें? AL इज इक्वल टू 2DC, AL इज इक्वल टू 2DC। ओके, इसी का एक्सटेंशन है। AB इज इक्वल टू BL प्रूव किया मैंने, सो आई कैन से दैट AL इज इक्वल टू AB प्लस BL। AL, यू वांट टू सी वेयर इज AL? A से लेके L तक AL क्या है? AB प्लस BL। ठीक है, बट AB और BL तो इक्वल है, तो कैन आई से दैट AL इज इक्वल टू AB प्लस AB, क्योंकि BL इज AB, अभी प्रूव किया मैंने। सो AL इज इक्वल टू 2AB, therefore we can say that AL is equal to, in place of AB you can write CD, 2DC। AL is equal to 2DC, AL is equal to 2DC। ये प्रूव हो गया थर्ड वाला। So if you see your question, AL is equal to 2DC प्रूव हो गया। Please note it down. This was one question. It took almost 20 minutes. One question, 20 minutes.
and I explained in detail without asking you any questions. Now if you don't understand anything from this whatever I have taught you, पूरा जो proof मैंने तुम्हें लिख के बताया, if you don't understand anything, please ask me the question. If you don't understand anything, please ask me the question. Okay, done. Can we move ahead? Yes, sir. Done. Okay. Yes, sir. Great. So I'm going to do question number 15 for you from exercise 9A. It's also a very interesting question. क्वेश्चन नंबर 15. सबसे पहले डायग्राम, राइट? यहाँ पे डायग्राम दिया है, मैं फिर से बनाऊंगा उसको क्योंकि उसका 1 मार्क होता है. Okay, so this is the diagram. Let us write what is given. क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये मैं लिख रहा हूँ. देखिए यहाँ पे AC इज इक्वल टू ED, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EDF, and AB is parallel to EF. This is the only information which we know from the figure. So diagram हो गया, given हो गया. To prove लिख देता हूँ. To prove में number 1 AB is equal to EF,
नंबर 2, BD इज इक्वल टू CF, AB इज इक्वल टू EF एंड BD इज इक्वल टू CF। कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सो नो कंस्ट्रक्शन, सीधा प्रूफ। ठीक है, इतनी चीज़ें लिखने का 1 मार्क होता है। डायग्राम गिवन टू प्रूव। अगर तुमने प्रूफ नहीं भी लिखा तो तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा इसका, बहुत सारे टीचर्स देते हैं। ओके, तो मुझे प्रूव करना है AB इज इक्वल टू EF। उन्होंने बोला ही नहीं है कि मुझे कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ये पार्ट्स को प्रूव करना है। क्योंकि एक बार 2 ट्राइंगल मुझे लोकेट हो गए, मैंने कर लिए लोकेट, एंड इफ आई प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल हो जाएंगे ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, so you need to locate 2 triangles. After locating 2 triangles you need to prove them congruent and then use CP/CTC to prove this thing what is asked in the question. So basically what you do is you locate 2 triangles. अब मुझे प्रूव करना है AB इज इक्वल टू EF, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा कि AB कौन से ट्राइंगल में है, तो मुझे जवाब मिलेगा ABC में। ठीक है, सो मेरा पहला ट्राइंगल है ABC एंड दूसरा ट्राइंगल EF कौन से ट्राइंगल में? EF है ट्राइंगल EFD में, ट्राइंगल EFD। ABC EFD, ये 2 मेरे ट्राइंगल है। इनको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इनमें जो भी पार्ट्स इक्वल है, 3 मिनिमम पार्ट्स तो चाहिए, तो उनको ढूंढने पड़ेंगे। कुछ डायरेक्टली दिए हैं, कुछ इनडायरेक्टली दिए हैं, जो भी है उसको लिखो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ AC इज इक्वल टू ED, क्यों गिवन। फिर मैं लिखता हूँ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EDF, गिवन, ये भी गिवन है। और एक हिडन पार्ट है, ये पैरेलल वाला मत लिख देना गलती से, 0 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन वो पैरेलल लाइन से तुम और एक पार्ट को इक्वल प्रूव कर सकते हो। AB और EF पैरेलल है और उनको ज्वाइन करने वाला ट्रांसवर्सल है BF, तो इट इज क्लियरली विजिबल दैट ABC एंगल और EFD एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर बना है। इफ यू सी सेपरेटली, आई विल ड्रॉ एंड शो यू, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये जो कोने वाले 2 एंगल है ना, जिसमें Z बन रहा है, उल्टा Z या सीधा Z जहाँ भी बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। So angle ABC will be equal to angle EFD. क्यों? Because they are alternate interior angles. ALT alternate, interior INT, angles, angle की साइन एपोस्ट्रोफी S, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। तो हो गया, बस काम अपना ख़त्म हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर 3 पार्ट तो मिल गए। अब तुम ट्राइंगल को ध्यान से देखो, क्या क्या 3 पार्ट है जिसमें वो इक्वल है। एक साइड है और 2 एंगल है, दोनों एंगल के बीच वाली साइड नहीं है लेकिन साइड अलग है, इसीलिए these 2 triangles will be congruent. Triangle ABC will be congruent to triangle EFD, but by which test? By angle side test. By which test? By AAS, angle side test. ठीक है, तो ये तो हो गया congruent proof। लेकिन हमें तो congruent proof नहीं करना था, हमें तो ये वाला प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू EF, तो ये भी हो गया प्रूफ।
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखो इनकी दो साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी और ई एफ, वो भी तो इक्वल होगी. सो वी कैन से दैट देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू ई एफ बाय सी पी सी टी सी. Corresponding parts of congruent triangles are congruent, right? So it's very easy. तो कभी कभी तुम्हें बताते नहीं क्वेश्चन में कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, वो बोलते हैं कि इनको पार्ट को इक्वल प्रूव करो. कॉन्ग्रुएंसी से ही वो पार्ट इक्वल प्रूव होता है. सो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ही करना है CPCTC यूज़ करके. अच्छा, दूसरी एक चीज़ उन्होंने बोली है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, BD इज इक्वल टू CF. अब तुम अगर ट्राइंगल देखते हो ABC और EFD, दोनों में BD और CF तो है ही नहीं. BD एंड CF आर नॉट पार्ट्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स. तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा. अच्छा, ABC ट्राइंगल में BC है और EFD ट्राइंगल में FD है. BC और FD तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये तो CPCTC है. देखो, इफ यू नोटिस ABC ट्राइंगल में BC है और EFD ट्राइंगल में FD है. BC विल बी इक्वल टू FD. जस्ट सी दिस. इसके नीचे लिखो ऑल्सो BC इज इक्वल टू FD. CPCTC. BC और FD इक्वल है. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बट BC क्या है? व्हाट इज BC? BC is BD plus DC. BC is BD plus DC. तुम बोलोगे सर ये कैसे हुआ? यहाँ पे देखो, BC क्या है? BC BD plus DC है कि नहीं? सॉरी, है कि नहीं? नहीं है. BC is BD plus DC and FD is FC plus CD. FC plus CD. FD को मैं लिखूंगा FC plus CD. FC plus CD. If you can see it, if your eyes are open, you will be, if your brain is working, you will be able to see. FD is FC plus CD. ठीक है. दोनों जो मैंने स्टेटमेंट लिखे उसमें एक चीज़ कॉमन है जो मिडल में है. क्या है वो? CD. राइट. तो CD दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से DC और यहाँ से CD को कैंसिल कर दूंगा, दोनों साइड से इक्वल कट हो जाएंगे. ठीक है. तो बचेगा क्या? Therefore we can say that BD is equal to FC. BD is equal to FC प्रूव करना था. देखो हो गया. Hence proved. Hence proved. Do you see that? लास्ट मिनट्स बची है. हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं और एक क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. 20 दिन में तुम्हारी एग्जाम है. देखो मैं क्लियर बताता हूँ. 20 दिन में एग्ज़ाम है. तुम्हें चाहिए सर और क्वेश्चन कराओ, मैं और कराऊँगा, लेकिन फिर और एक हफ्ता चला जाएगा. ठीक है. फिर बाकी के चैप्टर नहीं होंगे. तो या तो कॉन्सेप्ट मेरे वीडियो लेक्चर से और लाइव लेक्चर को मिला के, जैसे मेरा ओरिजिनल प्लान था वैसे समझ लो. That is the easiest way to get the concept. You are. Sir, can you hear me now properly? I can hear you now very clearly. So use the video lectures as well as the live lectures to finish this chapter as quickly as possible, or else Okay. Don't pay attention to the video lecture. Do passive learning over there and then depend on live lecture and
डोंट फिनिश द सिलेबस. यू हैव टू ऑप्शंस. दोनों में से एक, जो भी तुमको सही लगे बता दो, मैं वो करूँगा. वैसे मेरे हिसाब से तो सिलेबस कंप्लीट करना ही एक सही तरीका है. तो वीडियो लेक्चर और लाइव लेक्चर को मिक्स करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, खुद प्रैक्टिस करके, डाउट सॉल्व करके आगे बढ़ते रहने में ही मज़ा है. जैसे ही तुमने ये सोच लिया कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो यार, मुझे तो यही करना है बस, तो फिर छूट जाएगा सब कुछ. So that was question number 15 from exercise 9A. Now I am going to do some question from exercise 9B. Do you have question number 4 in exercise 9B? Yes. Okay. The same question? Is it the same question? Check it. Yes, sir, it is the same. Good. Yes, sir. It's same. Good. Very nice. Excuse me, sir. Yes. Sir, do they change the book pattern every year? See, it is just a gimmick to sell their books. NCERT पता है तुम्हें? NCERT. Do you know? Yes, I have heard of it. NCERT is the government of India's book, which is designed for CBSE syllabus. Oh, They have not changed their book since last 10 years, as far as I know. 10 साल से एक ही बुक, कोई चेंज नहीं, और सब किफ़ायती सस्ती बुक्स हैं. उनके ऊपर जो रेफरेंस बुक्स है उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, बट बुक्स चेंज नहीं हुई है. तो ICSE बोर्ड क्या है? ये पैसे कमाने वाला बोर्ड है. इनके ऊपर जो बुक, इनके खुद की कोई बोर्ड की बुक्स भी नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस बुक्स पे ही चलते हैं. बोर्ड ने कोई बुक नहीं लिखी है. बोर्ड ने बोला ये सिलेबस है, तो सेलिना ने बुक बना दी, और सेलिना को तो बुक बेचनी है, वो तो प्राइवेट पब्लिशर है, उसको तो पैसे कमाने हैं. तो सेलिना हर साल कुछ चेंजेस करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, और वो बुक नई नई बना के बेचता रहता है. तो सेलिना पैसे कमाते हैं, तुमको लूट के. ICSE भी खुश है, वो भी खुश है, तुम लूट रहे हो. कोई कुछ नहीं कर सकता, स्कैम है ये सब. अपडेट्स होने चाहिए. मैं नहीं ये बोलता हूँ कि 10 साल से एक ही बुक रखो, बहुत बढ़िया है. अपडेट्स होने चाहिए, लेकिन सिर्फ एडिट करके अपडेट मत करो ना. क्वेश्चन नंबर 4 को 5 बना दिया, 10 को हटा दिया, 11 नया डाल दिया. दैट इज़ नॉट अपडेट, दैट इज़ मेकिंग पीपल फूल्स. हाँ, तुम कोई चैप्टर नया डाल रहे हो, कुछ इंक्लूड कर रहे हो, ये होता है, ये भी हुआ है. ऐसा नहीं है कि सेलिना ने वो नहीं किया है. अकॉर्डिंग टू ICSE ये भी होता है, लेकिन हर साल तो नहीं होता है. या सो दैट इज ऑल अबाउट इट. ओके, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Sir? यस प्लीज. Sir, I just wanted to tell you that our teacher is on the chapter compound interest without using formula. Very good, and we have done that already. I am so Yes, proud. sir. So yes, sir, even our teacher is in compound interest without using formula. So now you must be enjoying those lectures because you know a lot of things about it. Yes, sir. Very nice. Sir, but she's going a bit too fast. She's is- right now in 3B, I think so. It is okay. You cannot do anything about it. Private school. They are least bothered about what you understand. They are just bothered about the fees they charge. Not everybody is as serious as me, ना, that तुम्हें समझ में आया कि नहीं. उनको कोई नहीं फर्क पड़ता है. वो लोग बोलते फीस भरो, निकलो यहाँ से, क्लासेस ज्वाइन कर लो, पढ़ लो वहाँ पे. दिस इज द आइडियोलॉजी. I wish Modi ji can hear me right now and change the education system. Dhani, you might have some contact. Please talk to Modi ji.
and tell. Need to do something about it. Okay. In triangle ABC, BD is a median to the side AC. ओम का फेवरेट क्वेश्चन आ गया क्योंकि इसमें मीडियन है, तो ओम माइट बी हैप्पी. ओम को लगेगा कि अरे वाह, ये तो मैं जानता हूँ. सो लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC में BD एक मीडियन है साइड AC के ऊपर. मैंने पहले ही बोला था, मीडियन होता है एक ऐसा लाइन जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के ऊपर ज्वाइन होता है. D मिड पॉइंट है AC का. BD is produced to E such that BD is equal to DE. अच्छा, अभी ये देखो, ये नया ट्विस्ट लेके आए ये लोग. ये बोल रहे हैं कि BD को आगे मैंने प्रोड्यूस किया E तक. उप्स, BD को आगे मैंने प्रोड्यूस किया कहाँ तक? E तक. ये है D. BD को आगे प्रोड्यूस किया E तक सच दैट BD इज इक्वल टू DE. BD इज इक्वल टू DE. तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन बनाई है BD के ऊपर, और DE के ऊपर भी सिंगल लाइन है. सिंगल लाइन का मतलब ये दोनों जुड़वा भाई सेम है, इक्वल. तुम्हें दिख रहा है AD और DC के ऊपर डबल लाइन बनाई है, मतलब ये लोग भी इक्वल है, AD और DC. तो लाइन का मतलब इक्वालिटी होता है. ओके, तो पूछा क्या है? In triangle ABC, BD is the median to the side AC. BD is produced to E such that BD is equal to DE. Prove that AE is parallel to BC. अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करूँगा, दैट इज़ मैं बनाऊँगा, जोड़ूँगा मैं CE को और AE को डॉटेड लाइन से. AE और CE को मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया क्योंकि इसका काम आने वाला है मुझे. तो मेरा डायग्राम तो रेडी है. डायग्राम के बाद मैंने क्या बोला है, क्या लिखना है? गिवन. Sir, given. सॉरी यार, सॉरी. मैं तुमसे नहीं, अपने आप से पूछता रहता हूँ यार, अपने आप से पूछ रहा हूँ. डायग्राम के बाद क्या लिखना है? गिवन. अपने आप मैं ही आंसर दूंगा. गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC, BD is median on AC. Therefore, AD is equal to DC. BD is produced to E such that BD is equal to DE. ये और एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन में ही दी थी. एंड टू प्रूव में मैं लिखूंगा कि भाई प्रूव करो AE is parallel to BC. कंस्ट्रक्शन भी है, यहाँ पे दिख रहा है कंस्ट्रक्शन, डॉटेड लाइंस. कंस्ट्रक्शन है join AE and CE. इतने का कितना मार्क है? 1 मार्क. तुम बोलोगे 1 मार्क के लिए इतना सारा लिखना पड़ता है? तो भाई प्रूफ ज्योमेट्री ऐसी ही है, हम कुछ नहीं कर सकते. दिस इज प्रूफ ज्योमेट्री, प्रूफ बेस्ड ज्योमेट्री. दिस इज प्रूफ बेस्ड ज्योमेट्री. सबने लिख लिया इतना? डायग्राम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन. Yes, sir. ग्रेट. अब मैं लिखूंगा इसका प्रूफ, और तुम देखो मैं कैसे इसको प्रूव करता हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग.
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. Sir, just a second, let me just note. Yeah. Take your time, no problem. There is no hurry. Yes, sir. चलो Yes, sir. let's solve it. ओके, तो मुझे प्रूव करना है AE इज पैरेलल टू BC. हो जाएगा, बहुत ही आसान है. प्रूफ, प्लीज नोट इट डाउन. प्रूफ लिखना है तुम्हें. याद रखना, प्रूफ में जब जितने भी प्रूफ अभी तक लिखे हैं ना, सब में एक चीज देखो, स्टेटमेंट रीजन. बहुत इंपॉर्टेंट. कोई भी स्टेटमेंट बिना रीजन के लिखना ही मत, गलत कर देंगे. ठीक है. सो पहला, अब मुझे प्रूव करना है AE इज पैरेलल टू BC. कोई भी कॉन्ग्रुएंसी से मैं पैरेलल प्रूव नहीं कर सकता. ठीक है. पैरेलल प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. तो AE और BC को पैरेलल प्रूव करने के लिए मैं ये बैक एंड की स्टोरी बता रहा हूँ. पहले ही फ्लैशबैक बताते हैं ना जो मूवीज़ में, सीरियल्स में, वैसा फ्लैशबैक बता रहा हूँ. इसके पीछे की स्टोरी क्या है? इसके पीछे की स्टोरी ये है कि अगर AE और BC को मुझे पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे या तो ये दोनों एंगल दिख रहे हैं तुम्हें, ये दोनों एंगल, इनको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा. AED और CBD, ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा. और ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके होगा. तो मैंने तुम्हें उल्टा लेके गया कि भाई AE और BC को पैरेलल प्रूव करने के लिए प्रूव दैट AED इज इक्वल टू CBD. टू प्रूव AED इज इक्वल टू CBD, प्रूव ट्रायंगल AED एंड CBD आर कॉन्ग्रुएंट. अब तुमने ट्रायंगल लोकेट कर ली है रिवर्स जाके. ठीक है. सो ट्रायंगल्स कौन से लोकेट किए तुमने? इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CBD. AED और CBD, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? AD इज इक्वल टू CD. क्यों है इक्वल? गिवन है. AD इज इक्वल टू CD लिखा हुआ है गिवन में. दूसरा क्या इक्वल है? BD नहीं, ED इज इक्वल टू BD, और ये भी गिवन है. AED और CBD में ED और BD भी इक्वल है. और क्या इक्वल है? अब ये चीज़ दी नहीं है, लेकिन अब तुम्हें शायद दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास आंखें हैं और तुम्हारे पास दिमाग है, तो तुम्हें यहाँ पे दिखनी चाहिए. देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ डायग्राम में. ये वाला एंगल ये वाले एंगल से इक्वल है, और ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CDB. रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. सो देयरफॉर ट्रायंगल AED, 3 पार्ट्स मिल गए हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD बाय SAS टेस्ट. साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देयरफॉर एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CBD. क्यों ये दोनों एंगल इक्वल है? क्योंकि CPCTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent. ठीक है. अच्छा, इसके बाद मैं ये लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि AE is parallel to BC. ठीक है. Since alternate interior angles are equal, therefore lines must be parallel.
अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल ही होनी चाहिए, अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए. सो दैट प्रॉपर्टी आई हैव यूज. छोटा सा प्रूफ है, क्यूट सा क्वेश्चन. ठीक है, नोट कर लो इसको. देन वी एंड दिस लेक्चर, टुडेज लेक्चर. दिस इज ऑल अबाउट योर congruency. That's it. This is what you do in congruency. But congruency एक ऐसा वास्ट टॉपिक है कि हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं. कोई लिमिट थोड़ी है कौन से शेप का ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, कितने क्वेश्चन बनेंगे. हजारों क्वेश्चन. हम हजारों क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते, इतना तो टाइम नहीं है अपने पास, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे का बेस क्या है. और यही मेरा एम्फेसिस रहा है, तुम लोग को ये क्लियर करवाना कि कॉन्सेप्ट समझ जाओ. ठीक है, सबने लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं. आई विल सी यू टुमारो. हाँ सॉरी, टुमारो मेरा क्लास नहीं है तुम्हारे साथ. आई विल गिव यू सम होमवर्क टू ट्राई वेदर यू हैव अंडरस्टूड or not. Just a moment, wait.